Now, today's topic is what? Secondary growth. Secondary growth. So, what do you mean by secondary growth? Plants का गर्थ बढ़ना, सर्कमफ्रेंस बढ़ना, चौड़ाई में बढ़ना, ये से कहते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ. तो प्राइमरी ग्रोथ क्या हो गई? प्लांट्स यदि लेंथ में बढ़ रहा है ना, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो वो कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ. अब already we have discussed about different meristem, like here what we have, this is lateral meristem, this is what we have apical meristem, this is what we have apical meristem. So apical meristem, they increase what? They increase length, and this is what we call it primary growth. So apical meristem, whether they are present at the shoot apex or maybe root apex, here also known as Ram or Siam, shoot apical meristem, they are responsible for primary growth or the length of the plants. Now this is what we have. This is we have lateral meristem. So here the lateral meristem, it is responsible for increase girth, circumference, got it? Or we can say width. So this is what we have: girth, circumference, and then width. Okay. Now what we have? We have two meristem, like. So this girth, circumference is responsible by the there are involvement of two kind of meristem. These are what? One is vascular meristem, or we can say vascular, rather to say vascular cambium and cork cambium. So vascular cambium again is further divided into two parts: intrafascicular or interfascicular. Interfascicular cambium. Now what do you mean by intra and inter? Got it? So intra means what? This is between the phloem and xylem. This is phloem, and this is what we have, xylem. So in between this xylem and phloem we have some small patches, and this is what we call it intrafascicular cambium, or also known as fascicular basicular cambium. Fascicular basicular cambium. Okay, now second one is what? Interfascicular, intra. So that is found where in between these two vascular bundle. So this is what we have, and this is, so intra and inter both held together and form a complete ring, and this is what we call it vascular cambium. Okay, so this is what we call it vascular cambium ring. Now how this intra and interfascicular cambium, how they are from the ring, and then how these are the part of lateral meristem. Okay, one thing I would like to clear here, like this intra, the origin of the intra, that is primary origin. यदि origin की basis पर देखें तो इसका origin कैसा है? प्राइमरी, क्योंकि ये पहले से ही रहती है यहाँ पे, ठीक है, origin के basis पर. और ये जो है ये बाद में बनती है. सो दिस इज व्हाट? सेकेंडरी इन ओरिजिन. दिस इज व्हाट वी हैव, सेकेंडरी इन ओरिजिन. और ये कौन सा हो गया? प्राइमरी ओरिजिन. गॉट इट? प्राइमरी ओरिजिन और सेकेंडरी ओरिजिन. डन. तो ओरिजिन के बेसिस पे हम कहें तो स्टेम की जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है दैट इज पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी. ठीक है, ओके. लेकिन अगर हम फंक्शन के बेसिस पे कहें इट इज सेकेंडरी इन नेचर, क्योंकि ये दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो क्या लेटरल मेरिस्टेम का सभी पार्ट सेकेंडरी होता है? नो. इंट्रा वाला जो पार्ट है वो ओरिजिन में प्राइमरी नेचर का होता है. फंक्शन कर दें
चौड़ाई बढ़ाते हैं तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि डाइकॉट और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, गर्थ बढ़ती है, नहीं गर्थ सर्कमफरेंस ऑन विथ का, ठीक है, चौड़ाई बढ़ती है। तो वो प्लांट के नाम है आपके, एक तो डाइकॉट, चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, एंड देन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। These are two example where secondary growth take place. Now we will see how this the process is going on. Okay. Now see vascular cambium. Vascular cambium. So in vascular cambium, what we have now? See. As we know, this is what we have, upper epidermis or cortex region. This is what we have, epidermis. Okay, this is cortex region, you know, that consists all hypodermis, cortical layers, endodermis, pericycle and all, isn't it? So, and then here what we have, these are vascular bundle, good. And this is what we have, medulla or pith. Medulla कहें या pith. This is what we have. ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है phloem, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है xylem, ठीक है। So the xylem found towards the pith and phloem towards this outside. Clear? Okay. So here, this is what we have. What we have here, this is this one. What we called it? This is what we called. This is what we call it. Intrafascicular cambium or vesicular cambium. Okay, now so that intrafascicular cambium, that is primary in origin, that is what we have, that is primary in origin, लेकिन फंक्शन में सेकेंडरी होती है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ करती है। ओके, अदर concept what we have, that is found in between xylem and phloem and small patches, a single layer found where, between xylem and phloem within vascular bundle as single layer. Okay, yes. Now, and then here this medulla, there are number of rays. ये rays हैं, इनको बोलते हैं medullary rays. क्या बोलते हैं इनको हम? These rays are called medullary rays. So in this concept, what we have now, see. मेडुलरी रेस जो है वही आपका बनाती हैं, क्या बनाती हैं वो बनाती है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, ये वाला क्या बनाती है, सॉरी, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है ये। Then they form the complete ring. So now we have to see how this medullary rays किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स। सो मेडुलरी रेज, वी हैव मेडुलरी रेज किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा कैसे टिश्यूज हैं, दे आर परमानेंट टिश्यूज, गॉट इट। परमानेंट टिश्यू हैं तो इनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है, इनमें डिवीजन कैपेसिटी होती है क्या, नहीं होती है, they lost their division capacity. Now then how we can then become meristematic, इनको meristematic कैसे बनाएंगे? So there is one of the process known as de-differentiation. क्या करेंगे हम, मेडुलरी रेज जो है पैरेन्काइमा की बनी हुई हैं, इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हम करेंगे
डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनमें हम करेंगे डी डिफरेंशिएशन। देखिए डी डिफरेंशिएशन, गॉट इट, ओके। सो आफ्टर डी डिफरेंशिएशन इट्स बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो यहां मेरिस्टेम बन रही है, सेकेंड टाइम बन रही है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। तो ये कौन सा हो गया, देन दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। Meristematic, now they have division capacity. Meristematic means they have now division capacity. So meristematic हो गई। Now this is what we call it secondary meristem, दोबारा बनी है इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, secondary meristem। और यही secondary meristem है, secondary meristem जिसे हम क्या कह रहे हैं, now it is called interfascicular, interfascicular कैम्बियम। फाउंड कहां पाई जाती है, इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल। तो ये तो पहले से ही थी, ये बाद में बनी है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट सेकेंडरी मेरिस्टेम इन नेचर, सेकेंडरी मेरिस्टेम। इस तरीके से ये पूरा, ये दोनों मिलकर के, ये वाला इंट्रा और इंटर दोनों मिलकर के देन दे फॉर्म व्हाट, देन दे फॉर्म वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। व्हाट दे फॉर्म, कैम्बियम, कैम्बियल रिंग और कैम्बियम रिंग, गॉट इट, और इन शॉर्ट नोन एज VCR। So this is how the formation of cambium ring is done. Got it? Now, अब हमें बनाना है सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करनी है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब हम वो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आएगा क्या, कि कोई भी कहीं भी पैरेन्काइमा है, चाहे मेटल्स की हो या पेरिसाइकिल की हो या कंजक्टिव टिश्यूज की हो, पैरेन्काइमा कोई भी है, कैसे वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। यहाँ ये पैरेन्काइमा ही है, ये लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। इनमें क्या करवाया हमने, डी डिफरेंशिएशन, सो इट्स बिकम मेरिस्टेमेटिक, तभी तो बनी है इंटरफेसिकल कैम्बियम। कैम्बियम मतलब दे हैव मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी, डिवीजन कैपेसिटी, क्लियर। तो दिस इज व्हाट वी वर, हाउ व्हाट वी हैव सीन, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, कैसे वो पूरा रिंग बनी है। कैम्बियम रिंग बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग कंप्लीटेड। नाउ अब ये क्या करेंगे कि अंदर की तरफ कट करेंगे जाइलम को। इसको अभी हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम एंड देन प्राइमरी जाइलम, ओके। सो आफ्टर कटिंग, कट 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 कट, दे फॉर्म, अंदर की तरफ जो बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ बनेगा, यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। एंड दिस इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। सो वेल, हम बात कर रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ की। तो सेकेंडरी ग्रोथ में हमने क्या देखा था कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो तो प्राइमरी ग्रोथ करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, ये देखें। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या, इंक्रीज इन गर्थ, सर्कमफेरेंस, चौड़ाई बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम में दो पार्ट हैं, वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कौन सा है, कॉर्क कैम्बियम। अब हम देखते हैं वेस्कुलर कैम्बियम क्या है। वेस्कुलर कैम्बियम हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, किस तरीके से होगी, देखिए ये है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये जो कैम्बियम है ना, इसको बोल रहे थे अपन ने, क्या बोला था, इंट्राफेसिकुलर या फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पे मेडुलरी रेज हैं, पैरेन्काइमा की बनी हुई है, ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो बनेगी कैम्बियम, अब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इस तरीके से पूरा क्या बन जाती है, कैम्बियम रिंग बन जाती है। ये देखिए, ये बनी कैम्बियम रिंग्स। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम,
और ये वाली कौन सी हुई जो बीच में है वेस्कुलर बंडल के, ये है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, और इसी को बोलते हैं वेसिकुलर कैम्बियम। ये ध्यान रखा जाए, बच्चों को भूल जाते हैं, इंट्रा को ही बोलते हैं वेसिकुलर कैम्बियम। इस तरीके से पूरा कैम्बियम रिंग बन गई। अब रिंग बनने के बाद क्या होता है कि अब हम आपको बोर्ड पे ले चलते हैं। चलिए देखिए रिंग बनने के बाद क्या होगा। देखिए रिंग बनने के बाद क्या होगा, हमने देखा इस तरीके से, ये तो आपका इंट्रा वाला पार्ट हो गया कैम्बियम का। ये जाइलम है, यहाँ पे क्या है, फ्लोएम है, जाइलम है, ठीक है, फ्लोएम एंड जाइलम, इस तरीके से। दिस इज कंप्लीट रिंग फॉर्म, दिस इज द मेन फीचर ऑफ द डाइकोट स्टेम। अब हम क्या करते हैं, हम एक को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम बड़े रूप में देख लेते हैं किस तरीके से होगा। अब जो कैम्बियल रिंग है, जो कैम्बियम है, वो कट करेगी इसको, अंदर की तरफ क्या बनाएगी, जाइलम, और बाहर की तरफ क्या बनाएगी, वो फ्लोएम कट करेगी। तो मैं आपको यही एक चीज और बता दूं, देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल इट प्राइमरी फ्लोएम। अब यहाँ पे रिंग के पास बनेगा फ्लोएम, तो यहाँ पे जो फ्लोएम बनेगा अब उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, और यहाँ पे रिंग के पास जो बनेगा, यहाँ पे जाइलम जो बनेगा, उस जाइलम को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, सेकेंडरी जाइलम। तो हमने क्या देखा, अंदर की तरफ जाइलम कट कर रहे हैं, बाहर की तरफ फ्लोएम को कट कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से, अगर हम इसी को देखें वेस्कुलर बंडल के रूप में, देखिए ये कैम्बियल रिंग है अपनी, पूरे में बनी हुई है, इस तरीके से रिंग बना दी अपन ने, ठीक है। और रिंग बनाने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं, ओके, तो हम क्या देख पाएंगे कि अंदर की तरफ कट करेंगे जाइलम, तो ये वाला जाइलम कौन सा हुआ, ये यहाँ जो बनेगा वो नया जाइलम होगा, ऐसे नोट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम, इसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी जाइलम, और इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो बन रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट सेकेंडरी फ्लोएम। जो नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कैम्बियम के आसपास बनते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, फ्लोएम अंदर की साइड, बाहर, और जो फ्लोएम बाहर की साइड और जाइलम अंदर की साइड। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा होगा, वो होगा प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम हो गए। तो क्या है, तो हमने क्या देखा, इनर साइड किसको कट कर रहा है, इनर साइड में इट फॉर्म जाइलम, ठीक है, जाइलम को बनाएगा, उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी जाइलम। और आउटर साइड यानी कि बाहर की साइड किसको कट कर रहा है, बाहर की साइड बना रहे हैं फ्लोएम, उस फ्लोएम को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। लेकिन ये दोनों कहाँ बन रहा है, ध्यान रखना चाहिए, कैम्बियम रिंग जो है, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम, इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम बन रहे हैं। तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का बनना कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। और हम देखें और कट करेंगे तो ये वाले और ऊपर हो जाएंगे, और इधर भी जाइलम बनता रहेगा। तो सबसे ज्यादा क्या बनता है, तो कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर की साइड में ज्यादा होती है। सो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, कैम्बियम एक्टिविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, किस साइड में, अंदर की साइड में। सो कैम्बियम एक्टिविटी इनर साइड कैसी होती है, ज्यादा होती है। इससे क्या होगा, जाइलम ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू फ्लोएम, सो रिजल्ट इन व्हाट विल हैपन हियर, फॉर्मेशन ऑफ जाइलम वुड बी मोर, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू फ्लोएम। और कितना ज्यादा बनता है ये भी हम बताते हैं आपको, 8 to 10 टाइम्स ज्यादा बनता है, 8 से 10 गुना ज्यादा बनता है फ्लोएम के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा होती है। बड़ी क्वेश्चन है। अब इससे क्या होगा, जाइलम बनता रहेगा, फ्लोएम भी बनते रहेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो फ्लोएम है ना, ये क्या करेंगे, ये कॉम्पैक्ट मास की तरह जमा हो जाते हैं यहाँ पे, दे फॉर्म व्हाट, कॉम्पैक्ट मास।
और धीमे धीमे क्या होता है ये यहाँ पर मास बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये भी कहने की प्रेशर दे रहा है। देयर इज कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ व्हाट? सेकेंडरी जाइलम। अंदर की तरफ क्या बन रहा है? ये देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ क्या बन रहा है? कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है। कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन हो रहा है। किसका? ऑफ जाइलम। रिजल्टिंग क्या होगा इससे ये क्रस्ट हो जाएगा। जो फ्लोएम है वो क्या होगा? क्रस्ट हो जाएगा। किस तरीके से देखें? देखो, चलिए इसको इधर ले लेते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे? कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है एंड accumulation of secondary xylem। क्या होगा इससे? जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है ना वो क्रस्ट हो जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्या होगा? उन पर प्रेशर पड़ता है तो उससे क्या होता है? दे बिकम क्रस्ट, दब जाते हैं। क्रस्ट मतलब क्या हो गया? वो वहां पे दब जाते हैं। प्रेशर पड़ रहा है भाई, क्योंकि इसके बाहर कौन सी है? इसके बाहर है पेरिसाइकिल। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है पेरिसाइकिल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दबाव पड़ रहा है, फिर ये पूरा इस तरीके से दब जाते हैं। तो इसको कह रहे हैं डन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो क्या होगा? तो ये चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस तरीके से, देखो अगर हम यहाँ की बात करें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि बाहर की तरफ बनता जा रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की तरफ क्या बनेगा इसके? यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है? सेकेंडरी जाइलम। तो नए टिश्यू कहाँ बनेंगे? बैचलर गैंग्लियन के पास। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है प्राइमरी जाइलम और ये वाले क्या हैं? प्राइमरी फ्लोएम। अब देखिए लोकेशन क्वेश्चन आते हैं कि पहले कभी प्राइमरी जाइलम फ्लोएम पास हुआ करते थे, अब वो कैसे हो गए? दूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बैचलर गैंग्लियन के पास नए बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी? सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। ये भी हट जाएगा, टर्सरी फ्लोएम टर्सरी जाइलम इस तरीके से बंद कर। और क्या होगा? तो आप देखेंगे डायग्राम में तो इस तरीके से ये कट करते क्या होगा? पूरा विड्थ बढ़ जाती है। इस तरीके से इसका सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से होगा। नाउ सी हियर, देखिए आप इसमें क्या हो रहा है? ये देखिए अब क्या हो रहा है? ये देखिए रिंग्स बन रही है ना। क्या बोल रहे हैं इसको? यहाँ पे अब देखिए ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। ये प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम। ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है क्या है? ये वाला पार्ट जो है वो है सेकेंडरी जाइलम। ये सेकेंडरी जाइलम है एंड दिस वन इज व्हाट वी कॉल इट प्राइमरी जाइलम, व्हिच इज मोर और लेस इंटैक्ट। जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इन एंड अराउंड द सेंटर। किससे? इन और अराउंड द सेंटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में, जाइलम के बारे में। एंड देन लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। देखो ये वाले दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? ये सेकेंडरी फ्लोएम दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये दिखा रहे हैं कैम्बियल रिंग। यहीं पे वो सेकेंडरी फ्लोएम, यहीं पे कैम्बियल रिंग बना रहा है। रिंग के ये वाला रिंग हो गया और इसके जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है वो फ्लोएम बता रहे हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे इसके नीचे रिंग है, क्योंकि बाहर की साइड फ्लोएम, अंदर की साइड जाइलम बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? जो सेकेंडरी फ्लोएम है और सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम है वो क्या होते हैं? क्रस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो क्रस्ट हो जाते हैं। कैम्बियम और क्या करती है? कैम्बियम कुछ मेटल रेज बनाती है लंबी। ये देखिए
तो अब जो मेटल रेज बन रही है उनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। सो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, टीएस देख रहे हैं इसको, ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं तो आपको इस तरीके दिखाई देगी कहाँ पे क्या है। ठीक है, अब ये फैलम जो नाम दे रखे हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे, फैलम क्या है, फेलोजन क्या है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा रीडिंग लेते हैं किस तरीके से होगा, देखो। हाँ ओके, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग की हम बात कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे, देखो द कैम्बियम रिंग जो है इट्स बिकम एक्टिव एंड बिगन कट ऑफ, कट करने लगती है अंदर की तरफ न्यू सेल्स। तो न्यू सेल बनाएगी अंदर की तरफ जो होंगी वो बनेगी, वो सेल्स मैच्योर्ड होंगी तो बनाएगी सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। सो द बोथ टुवर्ड्स इनर साइड भी करते हैं और आउटर साइड भी करते हैं। द सेल्स कट ऑफ कहाँ की तरफ, पिथ की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ, इनर साइड। तो क्या बनाएंगी वो, सेकेंडरी जाइलम, एंड देन मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। एंड द सेल कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी, यानी बाहर की तरफ, आउटर साइड, तो क्या बनाएंगे वो बाहर की तरफ, secondary phloem, they mature into secondary phloem. The cambium generally more active, ये क्वेश्चन बढ़िया आ गया, स्टार लगा है, more active, कहाँ ज्यादा एक्टिव होती है, अंदर की तरफ, इसलिए जाइलम ज्यादा बनता है 8 to 10 times more active inner side than the outer. As a result, amount of secondary जाइलम कैसा होता है, more in comparison to secondary phloem, and soon form a compact mass, पूरा मास बना लेंगे। इस प्राइमरी या सेकेंडरी फ्लोएम, अब देखो जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है ना, ये क्या करते हैं, ग्रेजुअली क्रस्ट हो जाते हैं। ये देखिए हम बताया था ना, दब जाते हैं, प्रेशर पड़ता है। तो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्युमुलेशन ऑफ दिस, क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है किसका, सेकेंडरी जाइलम का। द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन अराउंड द सेंटर, एंड सम प्लेसेस द कैम्बियम form the narrow band बनाते हैं सेकेंडरी मेटल रेज, पैरेन्काइमा which passes through secondary जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम से पास करेंगे, उनको बोलेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो ये जो पट्टियां आपको दिख रही हैं, what are these are, that is what we have this, ये सब क्या है, मेडुलरी रेज। ठीक है, तो ये किसकी बनी है, मेडुलरी रेज किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पैरेन्काइमा की, ये हमने आपको बताया था, मेड ऑफ नैरो बैंड्स। कैसे बैंड है वो, नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, नैरो बैंड, ये हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड। इसमें पहली लाइन, तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है, टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। 2 सीजन है, स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है। स्प्रिंग भी से फरवरी मार्च, उस टाइम पर कैम्बियम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट्स बनेंगे, ज़्यादा जाइलम बनेगा। ठीक है, सर्दियों में, ऑटम में, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जाइलम बनते हैं लेकिन फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स। अब फरवरी वाली, स्प्रिंग वाली जो बन रही है उसको बोलते हैं अर्ली वुड, ऑटम में बन रही है, सर्दियों में जो बन रही है उसको बोलते हैं लेट वुड। तो ये 2 तरह की वुड आपको कहाँ दिखेगी, सबसे पहला कहाँ पर, टेम्परेट रीजन पर। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको कंट्रोल करेंगी, तो इन मैनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, सी द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम किसके द्वारा होती है, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसे कंट्रोल में रहती है, मैनी फिजियोलॉजिकल, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, मैनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, क्या। और ये स्पेशली कहाँ देखा गया है, इन टेम्परेट रीजन। द क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, वेरिएबल होती है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात, सब कुछ होगा। सो वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जाइलम कहीं ज़्यादा, वेसल्स चौड़ी बनेंगी, ब्रॉड वेसल्स, वाइडर वेसल्स, और सर्दियों में नैरो वेसल्स बनती हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनती हैं, व्हाट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर देयर, वी हैव टू सी नाउ। सो दिस इज द क्लाइमेटिक कंडीशन, यूनिफॉर्म होती है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। स्प्रिंग सीजन में क्या है, कैम्बियम कैसी होती है, वेरी एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। कब, स्प्रिंग में, एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स,
बहुत सारे जाली एलिमेंट बनाती है। और इनकी जो बेसल्स हैं, जाइलम की बेसल्स है कैसी होंगी, बाइडर होती हैं। एंड वेसल्स कैसी होंगी यहाँ पे जो बनेंगी, दे आर बाइडर कैविटी, ठीक है। एंड जो यहाँ पे जो वुड बन रहे हैं इसको बोल रहे हैं स्प्रिंग वुड, और चूंकि ये पहले बनती है इसलिए इसको अर्ली वुड भी कहते हैं। स्प्रिंग वुड को ही हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, अर्ली वुड, ठीक है। स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। इन विंटर, बट विंटर वाले क्या बोलते हैं हम, ऑटम वुड। तो वहां पे क्या होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी लेस एक्टिव, जाली एलिमेंट्स कम बनेंगे, वेसल्स कम चौड़ी होंगी, दे हैव नैरो वेसल्स, isn't it? Now see the कैम्बियम कैसी है यहाँ पर, लेस एक्टिव है, दे फॉर्म फ्यूअर जाली एलिमेंट्स एंड नैरो वेसल, दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड, जो कि बाद में बन रही है इसलिए इसको बोलते हैं लेट वुड, ठीक है। द स्प्रिंग वुड कैसी होती है, लाइटर इन कलर, कलर की हम बात करें तो इट इज लाइटर इन कलर एंड लोअर डेंसिटी, वेयर एज ऑटम वुड जो होती है कैसी होती है, डार्कर कलर एंड हायर डेंसिटी। पास पास हैं तो डेंसिटी नेचुरली ज्यादा होगी। द टू काइंड ऑफ वुड्स, ये कंसंट्रेटिंग अल्टरनेट फॉर्म में रहेगी, अल्टरनेट कंसंट्रेटिंग रिंग्स के रूप में होती है, दे फॉर्म एनुअल रिंग्स। सो एनुअल रिंग्स कैसे देखेंगे, आप एक स्टेम कट करिए एंड एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री। तो एनुअल रिंग के अकॉर्डिंग हम ट्री की एज को आसानी से देख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब ध्यान रखा जाए कि रूट में हम नहीं देख सकते हैं, रूट में ये रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि रूट जो है वो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड नहीं होती, जमीन के अंदर है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, गर्मी सर्दी बरसात उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हम ये टेम्परेट रीजन में प्लांट है, क्या हम उनमें रिंग्स देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। ये वही होंगी जहां पर टेम्परेट रीजन। सी शोर्स, समुद्र के किनारे जो प्लांट्स हैं उनमें भी रिंग्स नहीं बनेंगी, क्योंकि वहां पर मौसम एक जैसा रहता है, ठीक है, वहां पे नहीं बनेगी। एंड दिस प्रोसेस व्हाट वी कॉल डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एनुअल रिंग्स वी कैन एस्टिमेट व्हाट एज ऑफ द ट्री, उसकी हम एज की गणना कर सकते हैं। रूट्स में रिंग बनती है, रूट्स में रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम देखें किस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा इससे देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी है, कैम्बियन या कैम्बियन रिंग्स जो है, इसकी एक्टिविटी है थ्रू आउट द डे एक जैसी नहीं रहती है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। अब ये किस केस में दिखा रहे हैं, दैट इज वेयर इन, किस रीजन में, टेम्परेट रीजन में, ये ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेट रीजन में, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर, नॉट यूनिफॉर्म, मतलब वो चेंज होता रहता है, वेरिएशन आते रहते हैं, ठीक है। एंड इट्स डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, कैम्बियम एक्टिविटी, कैम्बियम की जो एक्टिविटी है किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मैनी फिजियोलॉजिकल एंड और मैनी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये दोनों ही डिसाइड करते हैं किस तरीके की कैम्बियम रिंग बनेगी। अब नेक्स्ट देखें, तो इसमें दो तरह की वुड का फॉर्मेशन होता है, एक को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड, और इसी को सबसे पहले बनती है इसलिए इनको बोलते हैं अर्ली वुड, ठीक है, ओके। देन वी हैव ऑटम वुड और वी कैन से लेट वुड, ऑटम वुड और लेट वुड। अभी हमने क्या बताया कि कैम्बियम की एक्टिविटी और यहाँ पे स्प्रिंग में ज्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर द कैम्बियम एक्टिविटी, ये किसके रेफरेंस बता रहे हैं, कैम्बियम एक्टिविटी, कैम्बियम की जो एक्टिविटी है यहाँ पे कैसी होती है, दैट इज यहाँ पे रहेगी, दे आर मोर एक्टिव, वेयर इन, मोर एक्टिव कहाँ रहेंगे, इन स्प्रिंग में, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में। तो यहाँ पे कैसे रहते हैं, दे आर
लेस एक्टिव। दूसरा, अगर ये मोर एक्टिव हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो जाली एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ज्यादा बनेंगे। सो जालरी एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। यहाँ पे दे हैव फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स, जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। वेसल्स की बात करें तो यहाँ पे जो वेसल्स है वो कैसी होंगी, दे आर वाइडर, बहुत चौड़ी होती है। देखिए ये देखिए चौड़ी है। यहाँ पे कैसी है, दे हैव नैरो वेसल्स, कैसी है, नैरो वेसल्स। ये देखिए आप, नैरो वेसल्स है। तो वेसल्स की, ठीक है ना। और क्या क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से लगी रहेंगी, पास पास लगी रहती है। इसमें क्या होगा, डेंसिटी कैसी होगी, कलर कैसा होगा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका, कलर। तो ये आपको देखेंगे दूर दूर है, वाइडर एंड लाइटर इन कलर। कलर कैसा है इनका, लाइट कलर होगा। इनका कलर कैसा होगा, डार्क इन कलर। ओके, नेक्स्ट, तो इनकी डेंसिटी, दे हैव लाइट डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, कैसी डेंसिटी होगी इनकी, लाइट डेंसिटी। एंड दे हैव हैविंग व्हाट, हायर डेंसिटी। तो हमने ये देख लिया, हायर डेंसिटी। नाउ these two rings, they are formed as a alternate concentric form। आपने कोई स्टेम है उसको कट करके देखा होगा तो उसमें कई सारे रिंग्स होती हैं। तो रिंग्स जो होती हैं, so they how they are formed, so these two rings कैसे रहेंगी, ये होती है alternate concentric रिंग के फॉर्म में होती है, ठीक है। अल्टरनेट कंसेंट्रिक फॉर्म में होती है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट, क्या बोलते हैं इनको, इन्हीं को हम बोलते हैं एनुअल रिंग। एंड विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिंग वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ प्लांट की एज निकाल सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस, दिस टेक्निक व्हाट वी कॉल इट, दिस इज प्रोसेस नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब ये प्रोसेस कहाँ नहीं होती है, ये रूट में होगी क्या, एनुअल रिंग्स, रूट में एनुअल निर्माण नहीं होता है। और एक मोटा मोटा बता दें कि सी सोर्स, समुद्र किनारे जो प्लांट होते हैं उनमें भी एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर सेम रहते हैं। एंड रूट्स में भी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती है, इसलिए इनमें नहीं होगा। तो ये आपका हो गया पूरा किसके बारे में, कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे डिपेंड कर रही है, कब ज्यादा होती है कब कम होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्प्रिंग बोर्ड एंड देन ऑटम बोर्ड। ओके, नाउ हार्ड बोर्ड एंड देन सैप बोर्ड क्या होता है ये देख लेते हैं। ओके, अगर इसी को देखें तो क्या होगा, एक ये बन रही रिंग, दूसरी रिंग यहाँ ऐसे बन रही है, थोड़ा सा और मोटा बना देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से दो रिंग्स आपको दिखेंगी एंड दीज आर व्हाट वी कॉल एनुअल रिंग्स। क्या बोल रहे हैं इनको हम, एनुअल रिंग्स, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं हार्डबोर्ड और सैपबोर्ड की। तो इसमें क्या समझना पड़ेगा आपको, हार्डबोर्ड एंड सैपबोर्ड। तो ये बेसिकली सेकेंडरी जाइलम जो हम बात कर रहे हैं तो उसके पार्ट हैं। अब सेकेंडरी जाइलम भी क्या है, लगातार बन रहा है, तो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ठीक है। तो ये जो बनते जा रहे हैं उनको सबको हमने सेकेंडरी जाइलम में इंक्लूड कर लिया है। डन, कैसे देखो एक बार देखते हैं, जस्ट हैव ए लुक। यहाँ पे ये रिंग हो गया आपका, यहाँ पे कैम्बियम रिंग हो गई। तो यहाँ पे जो बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहे होंगे, यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले ये कौन सा जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम, ठीक है। यहाँ पे जो बन रहे होंगे इनको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पे जो बन रहे हैं इनको क्या बोलेंगे हम, टर्सरी जाइलम। और बन रहे हैं यहाँ पे तो क्या बोलेंगे इनको, क्वाटरनरी जाइलम, ठीक है। तो
इन्होंने इसको नाम क्वाटरनरी दिया है, इन्होंने इन सबको सेकेंडरी जाइलम ही कहा है। क्या कहा इन्होंने? व्हाट वी कॉल्ड इट, सेकेंडरी जाइलम। अब इन सेकेंडरी जाइलम में ये वाला जो जाइलम है ना, फोर्थ वाला, ये सबसे नया है, दिस इज न्यू वन। यदि हम इनके कंपैरिजन में बात करें, ठीक है, तो इनका क्या होगा, जो और बीच वाला जाइलम था इनका, तो ये क्या करते हैं, इनमें यहाँ पर लिग्निन, सुबेरिन, टैनिन, रेजिन, गम, एरोमेटिक ऑयल्स, तमाम सारी चीजें जमा हो जाते हैं ठूस ठूस के, ठीक है। इवन देखिए सेकेंडरी जाइलम तो ये भी है, लेकिन ये वाला जो है ना, दिस इज ओल्ड सेकेंडरी जाइलम, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। ये कौन सा है ना, न्यू, दिस इज न्यू सेकेंडरी जाइलम, दिस इज ओल्ड सेकेंडरी जाइलम। डन। ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। तो जितना ओल्ड वाला पार्ट है उसमें जमा होता रहता है, ये देखिए वो अंदर जमा होता रहेगा ऐसे देखिए इसमें। तो इन्होंने सेकेंडरी जाइलम के दो पार्ट बता दिए, ओल्ड वाला और न्यू वाला, ऐसे सोचो, ओल्ड पार्ट एंड न्यू सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। जो रिंग के आसपास है ना, कैम्बियम रिंग के आसपास, ये वाले सब नए होंगे। ये कैसे होंगे, सब के सब न्यू जाइलम बनाए, और ये वाला जो हो गया बीच में आ जाएगा ओल्ड में, है ये सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो किस तरीके से देखेंगे, तो हमने क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो आप कोडेड करिए आप इनको किस तरीके से। तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ ये जाइलम जो है, ठीक है, ये भी सेकेंडरी जाइलम है, पुराना वाला ओल्ड सेकेंडरी जाइलम, क्या बोल रहे हैं इसको, ओल्ड सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। इसमें क्या होगा, ये वाला भी जाइलम है, इसको भी सेकेंडरी जाइलम बोला है, इसको क्या बोलेंगे, न्यू सेकेंडरी जाइलम। जितना जाइलम पुराना होता जाएगा, जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम ही बोल रहे हैं इसको, एनसीईआरटी में उन्होंने सेकेंडरी जाइलम बोला है। वैसे याद करने के लिए आप कह सकते हो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, तो समझेंगे हम कि क्वाटरनरी वाला नया है, ये सब पूरा अंदर जमा हो जाएगा सेंटर में, हार्ट में, ठीक है। तो ये सेकेंडरी जाइलम के ही आगे पढ़ना पड़ेगा किस तरीके से, देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेकेंडरी जाइलम है ना, ये तो ये ओल्ड सेकेंडरी जाइलम, इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसको आप ऐसे देखें, ऐसे, तो बीच वाला जो पार्ट है उसमें जमा हो गया, क्या डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे हमने कर दिया है डिपोजिशन ऑफ व्हाट, लिग्निन, सुबेरिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक कंपाउंड, टैनिन, रेजिन, सब डाल दो इसमें अंदर, टैनिन, रेजिन, ठीक है, ये सब हमने इसमें डाल दिया। तो इतना जब जमा हो जाएगा, हमें पता है कि लिग्निन जमा हो जाती है तो क्या होगा, फिर इट्स बिकम हार्ड। तो ये जो सेंटर पार्ट है, डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, इन सेंटर, तो ये पार्ट कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, एंड इट इज आल्सो ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स, रेजिस्टेंट टू माइक्रोऑर्गेनिज्म, रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इस पे अटैक नहीं कर पाएंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म पे अटैक नहीं कर पाएंगे, रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या रहा है, माइक्रोऑर्गेनिज्म पे अटैक कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म पे अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इस पे कैसे रखना है आपको, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो HRD मतलब हार्ड, सॉरी SDR बोले इसको, क्या बोले इसको, SDR बोले, वो ठीक रहेगा, ट्रिक, HDR, हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि लिग्निन जमा है, लिग्निन जमा होगी तो ये तो हार्ड वैसे होगा, लिग्निन, सुबेरिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक कंपाउंड, टैनिन, रेजिन, ये सब। इसमें क्या करते हैं, क्या ये, अब ये आपने ठूस के भर दिया है बीच में, क्या ये वाटर कंडक्ट कर पाएंगे, से यस और नो, ओके, राइट आंसर। तो बीच में जब पूरा पैक हो गया तो यहाँ पर कंडक्शन नहीं होगा वाटर का, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा इनका, क्या फंक्शन हो जाएगा इनका, नॉट कंडक्टिंग वाटर, वाटर कंडक्शन नहीं होगा,
बट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। भाई मजबूत हो गए हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। दे आर नॉट कंडक्टिंग द वाटर, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। नाउ सी हियर द पेरिफेरल रीजन, दिस इज द सेंटर पार्ट, सेंटर रीजन है ना, इनर मोस्ट लेयर, सेंटर कहे और क्या कह सकते हैं इसको, और इनर पार्ट। वो कैसा हो गया है, हार्ड हो गया है। इसकी हम बात करें, ये कौन सा है, दैट इज पेरिफेरल रीजन। कौन सा हो गया ये, पेरिफेरल। इसमें वही पार्ट आ गया आपके सैप बोर्ड। सैप मतलब देखो समझ में आया, सैप मतलब क्या होता है, रस होता है। रस मीन्स कंडक्शन, यू नो, जूस। सो दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। इनका फंक्शन क्या है, पेरिफेरल रीजन है दैट कंडक्ट, ये करेंगे कंडक्शन ऑफ व्हाट, कंडक्शन ऑफ व्हाट, वाटर एंड मिनरल। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा पार्ट हार्ड होता है, तो हमें समझ में आ गया बीच वाला पार्ट हार्ड होगा। क्यों होगा बताओ भाई, क्योंकि जमाव है, डिपोजिशन है मिनरल्स। तो बेसिकली ये सेकेंडरी जाइलम के पार्ट हो गए, इससे देखना है, ये देखिए ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट आपको पूरा हो गया। किस तरीके से इनर मोस्ट कैसी होगी, तो उसमें भरा हुआ है टूस टूस के जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे सॉरी ये सब भरे हुए हैं, इससे क्या होगा, ये हार्ड हो जाते हैं। HDR हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, and they are not conducting the water but they provide, क्या provide करते हैं, they provide what, mechanical support, not conducting water but they provide mechanical support। तो कंडक्शन कौन करेगा, कंडक्शन करेगा जो पेरिफेरल रीजन है, तो वो वाटर का, मिनरल्स का कंडक्शन करेंगे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हार्डवुड एंड सैपवुड। ओके तो ये कैसे दिखेगा, एक पॉइंट और बता दें, ये कैसे दिखेगा, दैट इज डार्क इन कलर। डार्क कलर क्यों हो रहा है, डार्क इन कलर क्यों, क्योंकि ये जमा हो गए, ठीक है। और ये वाला कैसा होगा, ये लाइट इन कलर, पेरिफेरल रीजन वाला कैसा होगा, लाइट इन कलर। ओके